Okay, welcome back dear friends. I am Dr. Kaleem Raza. Today in this video lecture we are going to discuss about the aphasia. You must have heard about the aphasia. आपने स्ट्रोक के बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे और वैसे भी जब आप एग्ज़ाम में वाइवा दे रहे होते हैं या वाइवा ले रहे होते हैं तब भी आप एफेजिया के बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है. I will make it clear that what is the difference between sensory aphasia, motor aphasia and the conduction aphasia. Aphasia is basically speech disorder. Whether this is the sensory speech, motor speech or the conduction speech. In our brain, in left cerebral hemisphere, which is a dominant basically a part of brain, we have Broca area in the frontal lobe, more specifically in the inferior frontal gyrus here. This is a Broca area and this is basically motor speech area. And in our temporal lobe, we have Wernicke area. What is the exact location of Wernicke area in the temporal lobe? Posterior part, here you can see. Posterior part of the superior temporal gyrus. And Broca area is basically localized in the inferior frontal gyrus. And Wernicke area is basically controlling the comprehension and planning of the speech. So remember the difference please, that comprehension and planning of the speech is controlled by Wernicke area and motor speech is controlled by Broca area in your frontal lobe. आप मुझे सुन रहे हैं अभी, इसके बाद अगर आप बोलेंगे, सुनने के बाद समझना और फिर बोलना. अब ये जो इंफॉर्मेशन है वर्निकी एरिया से जो कॉम्प्रिहेंशन है ब्रोका एरिया तक, ये कौन लेके आएगा? ये फाइबर्स हैं. आर्कुएट फेसिकुलस, so these fibers which are connecting basically motor speech area to the sensory area, असल कनेक्शन इनका है. In case of any injury to your brain, in case of any injury to your Wernicke area, there will be sensory aphasia. Now let's discuss about the sensory aphasia first. And Wernicke area is the Brodmann area number. This is also very important MCQ. 22, 39 and 40. And Broca area is area 44 and area 45. You may have MCQ in your exam. So write it down my dear friends. This is also very important. So what is the Wernicke area? What is the Wernicke's? Let's discuss about sensory aphasia first please. Sensory area, if there is an injury, to your Wernicke area, which control basically comprehension and the planning of the speech. This type of aphasia is called as
fluent nonsensical aphasia. Nonsensical aphasia. Why this is fluent? Because motor area is intact. पेशेंट का प्रॉब्लम कहां पे है? सेंसरी स्पीच एरिया में है, तो वो बोल सकता है लेकिन उसको समझ नहीं है कि उससे पूछा क्या गया था. दिस इज कॉल्ड एज नॉनसेंसिकल अफेजिया. मतलब सवाल गंदम और जवाब चना के वाइवा पूछ रहे हैं मास्टर जी, जवाब आता नहीं है, आगे से थर्स्टी क्रो शुरू कर दिया, रुकना नहीं है, सवाल गंदम जवाब चना. सो फ्लुएंट नॉनसेंसिकल अफेजिया, दैट कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट इंटैक्ट. तो पेशेंट बोलते जा रहा है. और दूसरा अफेजिया कौन सा है? वो है मोटर और ब्रोका एफेजिया. दिस इज कॉल्ड एज नॉन फ्लुएंट एफेजिया. इसमें क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन इंटैक्ट है लेकिन पेशेंट का जो स्पीच का जो मोटर पार्ट है वो इंपेयर हो चुका है. तो हमारे पास ऐसे भी केस स्टूडेंट्स आते हैं कि उसको क्वेश्चन की समझ आ रही होती है. मैं आपको ये जो एग्जांपल्स दे रहा हूं इससे ये काम आपका आसान हो जाएगा. क्वेश्चन की उसको समझ आती है लेकिन वो उस तरह से आंसर नहीं कर पाता, वो रुक रुक के बोलता है. आपने स्ट्रोक के बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे, आप उससे पूछते हैं, उसकी खैर खरीद दरियाफ्त करते हैं, उसको समझ आ रही होती है, बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता. वाई? बिकॉज लियन इज बेसिकली इन द मोटर ब्रोका एरिया. तो इसे क्या कहते हैं? ब्रोका एफेजिया. सो दिस टाइप ऑफ एफेजिया इज बेसिकली नॉन फ्लुएंट एफेजिया. नॉन फ्लुएंट एफेजिया. एंड व्हाट इज द थर्ड एफेजिया? इज अ कंडक्शन एफेजिया. Conduction aphasia. What is conduction aphasia? My dear friends, I have just told you that between the Wernicke area and the Broca area, जो फाइबर्स इन दोनों को कंटैक्ट करते हैं उन फाइबर्स को क्या कहते हैं? आर्कुएट फेसिकुलस. ये चीज समझने की जरूरत है, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं. कंडक्शन एफेजिया, इसको क्या कहेंगे? कंडक्शन एफेजिया. प्रॉब्लम कहां पे है? इंजरी इन द आर्कुएट फेसिकुलस. कि पेशेंट की कॉम्प्रिहेंशन इंटैक्ट है, मोटर स्पीच भी इंटैक्ट है, लेकिन जो चीज उसने समझी सुनने के बाद बोलने की कोशिश की, वो जो पाथवे है वहां से 100% जो इंफॉर्मेशन है उसके ब्रोका एफेजिया तक नहीं पहुंची. ये इसी तरह यह है कि अगर एक केबल है उसके अंदर आपने देखें छोटी छोटी वायर्स होती हैं, अगर कुछ का कनेक्शन लॉस हो जाए तो सिग्नलिंग लॉस्ट हो जाती है. इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ द रिपीटिशन. लॉस ऑफ रिपीटिशन. लॉस ऑफ रिपीटिशन मीन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिपीटिटिव एफेजिया. के लेट्स दिस इज योर सेंसरी स्पीच एरिया है, दिस इज योर मोटर स्पीच एरिया, and these are the arcuate fasciculus. अब जो इंफॉर्मेशन मोटर स्पीच एरिया तक आई, आप पेशेंट को पूछेंगे दैट प्लीज से रेफ्रिजरेटर. पेशेंट आगे कुछ और बोलेगा, वो फ्रीफ्रिजरेटर बोल देगा, रेफ्रिजरेटर बोल देगा. जब तक वो 100% करेक्ट वर्ड नहीं बोलेगा वो बोलता रहेगा. सो कॉम्प्रिहेंशन इज इंटैक्ट, मोटर पार्ट इज इंटैक्ट, बट पेशेंट इज बेसिकली फाइंडिंग डिफिकल्टी टू से द करेक्ट वर्ड, मीन लॉस ऑफ द रिपीटेशन.
So this is called as repetitive aphasia. I hope your concept is now clear. Thank you my friend.